Good morning to everyone. Yesterday I complete up to 8 question of exercise 2A. Now today I solve question number 9. In question number 9 says that find the value of x for which x की वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए 5/3 to the power -4 multiply by 5/3 to the power -5 is equal to 5/3 to the power 3x. In this question, base are same 5/3, 5/3. So we can solve by the property of a upon b to the power m multiply by a upon b to the power n. That is equal to a upon b to the power m plus n. Now let us see about here 5/3 to the power -4 multiply 5/3 to the power -5. We can solve by this property a upon b to the power n multiply by a upon b to the power m. That result is a upon b to the power n plus m. This property can be applied on the question 5/3 to the power -4. We here multiply, then powers will be add. -4 plus -5. Okay, equal to -5/3 remains same. Now next line. There are both base are equals, so we can compare the powers of both sides. On comparing powers, on comparing power -4/5 in left hand and in right hand 3x, then both powers are equal. Then -4 plus -5, that is equal to 3x. -4 plus -5 is equal to -9 equal 3x. Then the value of x will be -9/3. 3 से 9 को कट करेंगे, x इक्वल टू -3. क्लियर? सब स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा. नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 4/9 to the power 4 multiply by 4/9 to the power -7. That is equal to 4/9 to the power 2x minus 1. This question can be solved by above property. So this question is homework. In this question, multiply, change into plus sign in powers. 4/9 to the power 4 plus -7. Okay, and then we compare on the powers of both sides and find the value of x. If any doubt in this question, you ask me tomorrow. Next, we solve question number 11. By what number should -6 to the power -1 be multiply? By what number should be multiply? हम किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करें? हम किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करें? लेट x शुड बी मल्टीप्लाई. तो उस नंबर को हम क्या लेट कर लेंगे? उस नंबर को x लेट कर लेंगे कि हम जो है x से -6 टू द पावर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट प्रोडक्ट बिकम 9 टू द पावर -1. जिससे कि हमारा क्या है, प्रोडक्ट जो है हमारा इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, एक तो वो नंबर जिसको हमने x लेट किया है और एक -6 टू द पावर -1. द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स विल कम 9 टू द पावर -1. लेट अस टॉक अबाउट. लेट x should be multiply to get sorry, टू ही कर लीजिए, to -6 to the power 1. Then we will multiply x multiply
negative 6 to the power negative 1, that is equal to 9 to the power negative 1 as given in question. We remove the negative sign and negative 6 comes into denominator, that is equal to 1 upon 9. In this line we can use this property x to the power negative n equal to 1 upon x to the power positive x. Negative change into 1 upon x to the power negative n. Then x equal to x comes into numerator, so negative 6 comes into numerator and 1 comes into denominator. The value of x will come negative 6 upon 9, that can be cut by 3. 3 3s are 9, 3 2s are 6. Minus sign also will available. X equal to negative 2 upon 3. Then number हमने x लेट किया था नंबर को, तो द वैल्यू ऑफ नंबर विल कम्स negative 2 upon 3. Easy. If you any doubt, you clear on WhatsApp. Next question is here. Question number 12. By what number should negative 2 upon 3 to the power negative 3 be divided so that the quotient may be 4 upon 27 to the power negative 2? By what number should be divided? negative 2 upon 3 to the power 3 को किससे डिवाइड करें, ठीक है ना, negative 2 upon 3 to the power negative 3 को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास रिजल्ट ये आए. तो हम इसको क्या लेट कर लेते हैं कि हम इसको लेट करते हैं कि x से डिवाइड करेंगे और इक्वल लिख देंगे इसके, ठीक है. तो हम इसमें क्या लेट कर लेंगे, आइए आंसर पर. लेट negative 2 upon 3 to the power negative 3 should be divided by x. According to problem, we can written as negative 2 upon 3 to the power negative 3 divided by x, that is equal to 4 upon 27 to the power negative 2 as given in question. Okay, we can use the property in this line a upon b to the power negative n, that is equal to b upon a upon b change into b upon a, minus sign removed. So be careful in this property. Here a upon b to the power negative n and here b upon a to the power positive n. Negative change into positive and denominator change into numerator and numerator change into denominator. Okay, we can find the value of x. Negative 3 upon 2 written as in expanded form. Power 3 है, 3 times written करेंगे, से 1 2 3. negative 3 upon 2, negative 3 upon 2 and negative 3 upon 2 multiply by 1 upon x, that is equal to 27 upon 4 multiply by 27 upon 4. Numbers which are present in denominator comes into numerator on right side, and numbers which are present into numerator that comes into the denominator of right hand side. 27 will be cut from 3 9 times and 9 will be also cut by 3 times and 3 will be also cut by 3 1 times. 4 cut by 2 and 2 cut by 4, 2 cut by 2 and next 2 is cut by 4. Then the value of 1 upon x will equal to 27 multiplied by negative 1, because negative multiply negative positive, 1 negative remains same. It can be expressed another example. We can read in the starting of a chapter x to the power negative 1 की पावर, अगर नेगेटिव x की पावर क्या होती है आपके पास ऑड नंबर थी. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के कि अगर हमारे पास नेगेटिव 1 की पावर ऑड नंबर होती है तो उसका रिजल्ट ऑड आता है, वो नेगेटिव आता है. तो यहाँ देखिए नेगेटिव क्या है, ऑड नंबर्स है 1 2 3, तो रिजल्ट विल कम्स इन
नेगेटिव सिंबल, 27 रिमेन सेम अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये क्या जाएगा, x इधर पहुंच जाएगा और 2 इधर पहुंच जाएगा, चेंज हो जाएगा ये ऐसे, इसको हम उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो x नीचे है तो वो ऊपर पहुंच जाएगा और 2 ऊपर है तो ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा मीनिंग। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, x की वैल्यू आती है -2/7। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट if 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 equal to 125, find the value of x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इन दिस क्वेश्चन बेस आर डिफरेंट इन ईच टर्म, so we can same the base of each term to solving the problem। We can write 25 as 5 square because 5 5s are 25, and now also write 125 in the form of 5 to the power 3 because 5 multiplied by 5 multiplied by 5 is equal to 125. We can use the property a to the power n divided by a to the power m. Here base is same, so we can make same base, ठीक है ना, we make same base to solving problem। Then a to the power n minus m, divide sign will be changed into minus in the power, 5 to the power 2x minus 1 because minus 2 is greater than positive 1, and also answer will comes in negative term due to negative 2 is greater than negative 1। 5 to the power 3 remains same। On comparing the powers 2x minus 1 is equal to 3, नेगेटिव 1 को हम सेकंड दूसरी साइड ले आएंगे तो 2x इक्वल टू 3 प्लस 1, x इक्वल टू 4 और 2 पहुंच जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, 4/2, x इक्वल टू 2, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब इस एक्सरसाइज में कोई भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, जो डाउट है मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा हाँ, कल एक बच्चे ने डाउट भेजा था कि सर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, वो भी क्लियर कर देता हूँ मैं हैंड टू हैंड। यूट्यूब पे अपना नेम सेंड कर देना कमेंट बॉक्स में, तो जैसा आप कमेंट बॉक्स में नेम सेंड करेंगे तो मैं उसको जो है उसके आपके अटेंडेंस ले लूँगा। तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना नेम ज़रूर सेंड कर देना। कल सेंड किया था एक बच्चे को, कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, हाँ ये वाला था। तो कोई भी किसी का डाउट हो तो बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा आपको। 2/3 to the power 4 डिवाइड बाय 2/3 to the power 3, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी a/b to the power m डिवाइड बाय a/b to the power n। जब डिवाइड का साइन होता है तो यहाँ क्या जाता है, माइनस आ जाता है, तो हमारे आ जाएगा इक्वल टू 2/3 to the power 4 माइनस 3 इक्वल टू 2/3 to the power 1, दैट इज इक्वल टू 2/3। तो ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया था, बच्चे का नाम तो मेरे याद नहीं आ रहा है, और किसी का डाउट हो तो वो क्लियर कर लेना। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट है बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पहले रूल्स क्लियर कर लेते हैं। देखो आपने नंबर लाइन बहुत पहले पढ़ी थी, आपने नंबर लाइन सभी को आती है। नंबर लाइन, इन नंबर लाइन when we move in the right direction of the number line then positive values are increasing, but when we move in the left side of a number line then negative values are increasing, or in other words when we go from right to left then number will be also decreases because -3 is less than -2, -2 is less than -1, -1 is less than 0 and 0 is less than
positive 1. So here clear that when we go from the right to left, then number will be also decreases, and when we go from the left to right, number also increases. In this exercise we change the usual form to decimal form or decimal form and standard form. यूजुअल फॉर्म से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को चेंज करेंगे. अब ये जो पॉइंट है डेसिमल किस तरह शिफ्ट होता है, जैसे अगर हम डेसिमल को लेफ्ट टू राइट अगर मूव कराते हैं, डेसिमल को किससे लेफ्ट टू राइट अगर मूव कराते हैं, जो हमारा उल्टा हाथ है उससे सीधे हाथ की तरफ अगर मूव कराएंगे, जो 10 की पावर्स हैं वो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी. डिक्रीज होने का मतलब समझ गए थे आप, डिक्रीज होने का मतलब माइनस में जाएंगी, माइनस में या उसमें कम हो जाएंगी पावर्स, है ना, डिक्रीज होंगी. इट इज क्लियर बाय एन एग्जाम्पल. 0.00027. ठीक है, तो अब हमें इस पॉइंट को मूव करना है. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि हमारा बस आगे एक ही नंबर आना चाहिए और उसके बाद पॉइंट हमें यूज करना है. जैसे 27 था तो हमने इसको 2.7 किया, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ आना चाहिए एक नंबर के तुरंत बाद. ऐसी नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल में 2.73 और आपके जितने भी क्वेश्चन है उस वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो एक नंबर के आगे से गिरेंगे, आगे की साइड से एक नंबर के बाद ही जस्ट जो है पॉइंट आपका यूज होना चाहिए. तो एग्जाम्पल में देखो, जब हम इसको अब पॉइंट को करेंगे शिफ्ट करेंगे, तो मैंने लिखा मूव लेफ्ट टू राइट. जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 1 प्लेस मूव किया, 2 3 4, ठीक है, और एक तो आगे रहने के लिए मैंने कहा है तो बस 4 टाइम ही होगा, अगर यहाँ ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा. तो 4 आया हमारा. 4 टाइम हम किधर मूव हुए, इधर राइट की तरफ. तो किधर क्या होंगी 10 की पावर्स, क्या होंगी 10 की पावर्स, डिक्रीज. देखो यहाँ पर कुछ नहीं होता, जहाँ पर कुछ नहीं होता यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी नंबर पर. तो 1 का मीनिंग क्या होता है, 1 का मीनिंग होता है, देखो आपने 10 टू द पावर अगर 0 होंगी तो वो इक्वल टू होता है किसके, 1 के. होता है नहीं होता, अगर 10 टू द पावर क्या होंगी 0 होती हैं तो वो 1 के इक्वल होता है. और 1 के अगर किसी में मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्टिव पड़ता है. तो एक तरीके से ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 10 टू द पावर 0 प्रेजेंट थी, क्योंकि 10 टू द पावर 0 का मतलब यहाँ पर 1 प्रेजेंट था, और 1 की हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है. अब हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है, आगे से यहाँ पर लाना है 2 के बाद, क्योंकि एक पॉइंट के बाद मैंने बताया. तो कितने चले हम, 1 2 3 4 चले, तो यह जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर -4. दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हेन वी मूव द डेसिमल move right to left then power of 10 increases. देखिए यार, यहाँ पर 10 टू द पावर 0 है और यहाँ आप कहोगे कि सर 0 से 4 हुई हैं, तो ये तो सर इंक्रीज, ये तो इंक्रीज हो रही है, आपने लिख रखा डिक्रीज. नहीं, ये निगेटिव पावर्स हैं. मैंने बताया था ना, हम जितना भी नंबर लाइन के क्या जाएंगे, इधर जाएंगे तो ये क्या होती है, छोटी वैल्यू होती चली जाती है. जितनी निगेटिव वैल्यू आती रहेंगी वो क्या होंगी, वो स्मॉलर होंगी उसमें अपने पहले वाली वैल्यू से. जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, -2 क्या है, -3 से बड़ा है, जबकि देखने में लग रहा है कि 3 बड़ा होगा, लेकिन -3 छोटा है 2 से, -2 से. तो इसलिए यहाँ पर 10 की पावर क्या थी, 0 थी, 0 बड़ा था. 10 टू द पावर -4 से 0 बड़ा था, क्योंकि 0 क्या था, 0 मिडिल में होता है टर्म. उस तरह जब हम क्या जाएंगे राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो अब कोई भी नंबर अगर लिखा होता है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स उसके पॉइंट सबसे पीछे है, क्योंकि सबसे पीछे जब किसी का पॉइंट होता है तो हम उसको यूज़ ही नहीं करते. तो एक तरीके से ये भी क्या है, हाइड है. अब इस पीछे से हमें क्या लाना है, यहाँ तक लाना है पॉइंट को. 1 2 3 4 5, कितने स्टेप्स चले हम, 5 स्टेप्स. तो ये आ जाएगा 2.73 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी नेगेटिव नहीं है, +5 आएगा, +5 आएगा ये, बिकॉज 10 to the power increases. Here 10 to the power 0. Here 10 to the power 0. When we go from right to left, then 10 to the power increases. Here 10 to the power 0 and here 10 to the power 5. Hence 10 to the power increases. Now let us talk about exercise 2B.
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, हर एक नंबर को हमें क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जिसमें एक पॉइंट क्या हो आगे हो और बाकी सब क्या हो पॉइंट में हो। तो मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं एग्जाम्पल की तरह और बाकी आपको करने हैं। तो देखिए ये हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है बड़ा सा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर मैंने बताया था आपसे कि 1 की अगर मल्टीप्लाई करो कोई इफेक्ट पड़ता है, नो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने क्या कर लिया, उसको x⁻0 मान लिया। जैसे x⁻0 = 1 होता है, तो ऐसे 10⁻0 = 1। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो यहाँ पर 1 था तो 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ 1 की जगह हम लिख दें 10⁻0। Here the point present after 0. So this point remove from this place to that place. Now let us see. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. That number is 4.63 and 10⁻12. Why positive 12? Because point remove from right to left, from left to left. Point remove from right to left. Then positive powers comes out and powers will be increases. Powers will increases from 0 to 12. Clear? नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिससे और अच्छे से क्लियर हो रहा है। 345 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, पॉइंट है यहाँ पर प्रेजेंट, तो इसको फिर मूव कराएंगे 1 2, क्योंकि यहाँ एक रहना चाहिए बस। 2 प्लेस मूव हुआ, यहाँ पर थी 10⁵, तो 2 प्लेस मूव हुआ तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, जब 2 प्लेस मूव हुआ तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको 3.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁴, बिकॉज 10⁻, जो 5 है वो तो हमारा पहले से ही यहाँ प्रेजेंट था, और इस जो पॉइंट को हमने मूव किया तो इसकी वजह से 10⁻² आया है। अब क्या करेंगे, जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी a⁴n इंटू b⁴n, सॉरी a⁴m, that is equal to a⁴m plus n. So similarly we will use 10⁻² थे 10⁵ थे, दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। 3.45 इंटू 10⁻7। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, योर होमवर्क। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 तक किसी को भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर ले और कॉपी अपनी मेंटेन करता रहे। अटेंडेंस जो है यूट्यूब वाली वीडियो की यूट्यूब वाले पे लूँगा, बस सबकी अटेंडेंस नोट कर रहा हूँ। तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना बस नेम लिख देना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में केवल अपना आपको नेम लिखना है। और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनसे भी कहिए, जो आपके साथ के बच्चे हैं वो आराम से अपनी कॉपी को मेंटेन करें। किसी भी दिन में फोटोग्राफ्स मंगा लूँगा जहाँ तक मैंने वर्क करा दिया है, चैप्टर 1 प्लस एक्सरसाइज 2B। ओके, सो गुड बाय।